Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland Official, and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I'm Ummi Muhammad, and today we are going to solve the exercise of unit number 10. And the name of this unit is The Way Through the Woods from New Oxford Modern English Book 6. Let's start this lecture with prayer. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. The first section of exercise is section A, using auxiliary verbs present perfect tense. Read the following sentences. नीचे दिए गए जुमलों को पढ़ें. They shut the road through the woods. They have shut the road through the woods. Can you see in what ways the sentences are different? क्या बता सकते हैं किस तरह से ये दोनों जुमले एक दूसरे से मुख्तलिफ है? The first sentence is in simple past tense. पहला जो जुमला है वो simple past tense यूज़ करके बनाया गया है. And the second is in the present perfect tense. और दूसरा जुमला present perfect tense में है. Here is a table. यहाँ पे एक टेबल गिवन है showing some of the tenses to remind you. आपको याद करवाने के लिए कुछ tenses के बारे में डिटेल है इसमें. टेबल को देख लेते हैं. 3 कॉलम्स हैं, past, present and future. फर्स्ट में है simple tense, he broke, he breaks, she will break. और present perfect tense है next, he had broken, he has broken, he will have broken. यहाँ पे नोटिस करना है, we use the present perfect tense when we want to show a link between what we are speaking about. Now इसमें हम जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं तो जो भी एक्शन हम कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे होते हैं. एक्शंस और इवेंट दैट वर कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हो चुके हैं, उन दोनों इवेंट्स का एक लिंक बना रहे होते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट है. दे हैव स्पेंट ऑल देयर पॉकेट मनी सो दे वांट सम मोर. और सिंपल पास्ट में होगा तो दे स्पेंट ऑल देयर पॉकेट मनी. समीर वेंट टू लाहौर. बस यहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. रिमेंबर टू यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हेन यू वांट टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच बिगैन इन द पास्ट एंड इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग. हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को तब यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी प्रेजेंट में भी वो चल रहा है, कंटिन्यूइंग है. नंबर 1 हमें गिवन है, राइट द प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन. जो वर्ब हमें गिवन है उसकी हमने प्रेजेंट परफेक्ट या फिर सिंपल पास्ट टेंस में इसको चेंज करके ब्लैंक्स को फिल करना है. A had the children dash cricket last week. Play. B, up to now they dash back rupees 1,000 of the loan. Pay. C, I dash a member of the sports club for 2 years and I hope to remain a member for the rest of my life. B. Next sentence is D. Last year I dashed to Dubai for a holiday. Go. E, Salman dashed in 2005 and I dash him since leave and not C. इन दोनों को यूज़ करना है. F है, राहील dash a trip to Murray every year since 2001. Make. G, his English and mathematics dash his term improve. Last is H, he dash in Karachi for 9 years before his transfer. Live. गिवन वर्ब्स की फॉर्म्स चेंज करने के बाद जब हम इसको ब्लैंक्स में फिल करेंगे, ए है played, B have paid, C have been, D went, E left, have not seen, इसमें 2 ब्लैंक्स हैं. F has made, G have improved and last is H lived. The next section of exercise is section B, working with words. नंबर 1 है, look up the following words in your dictionary. इन वर्ड्स को डिक्शनरी में चेक करें. इफ़ यू नीड टू, अगर आपको ज़रूरत है तो, यानी आपको इनका मायने अगर नहीं आता, मीनिंग नहीं पता, तो डिक्शनरी को चेक करें. एंड देन पुट अ मार्क, और एक मार्क लगाना है, इसमें निशान लगाना है कॉमा का. इन ईच वर्ड टू शो वेयर द एक्सेंट फॉल्स, जहाँ पे एक्सेंट फॉल हो रहा है. फर्स्ट राइट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. पहले आपने इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेना है. वर्ड्स हैं पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, प्रोवाइड, प्रोसीड, प्रोहिबिट, परसू एंड पल्पिट. पहले हम इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे. 1 पॉलिटिक्स, नंबर 2 पॉलिटिशियन, 3 प्रोसीड, 4 प्रोहिबिट, 5 पल्पिट, 6 प्रोवाइड एंड 7 परसू. अब इन वर्ड्स में जहाँ जहाँ भी एक्सेंट फॉल हो रहा है या सिलेबल चेंज हो रहा है तो हम वहाँ पे कॉमा का मार्क यूज़ करेंगे उसको मेंशन करने के लिए. जैसे है पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, इसमें पॉलिटिक्स में PO और पॉलिटिशियन में C पे, प्रोवाइड में E, प्रोसीड में D, प्रोहिबिट में B, परसू में भी लास्ट जो E लेटर यूज़ हुआ है वहाँ पे, और पल्पिट में L. नेक्स्ट इज़ नंबर 2, नाउ डू द सेम फॉर द लिस्ट ऑफ वर्ड्स. अभी यही प्रोसीजर हमने लिस्ट के ऊपर भी अप्लाई करना है. वर्ड्स हैं निगलेक्ट, नेसेसरी, निकोटीन, नॉसियंस, नोटोरियस, न्यूट्रल एंड सिलेबल्स. इन वर्ड्स में जहाँ पे एक्सेंट फॉल हो रहा है, नेसेसरी में है C, निगलेक्ट में T, निकोटीन में I, नॉसियंस में S, न्यूट्रल में U, नोटोरियस में R और सिलेबल्स में L. जो फर्स्ट L है सिलेबल में डबल L यूज़ हो रहा है, इसमें फर्स्ट L के बाद हम कॉमा अप्लाई करेंगे.
नेक्स्ट इज नंबर 3, रीड द वर्ड्स इन द लिस्ट अलाउड। नीचे दी गई लिस्ट में जो वर्ड्स हैं इनको बुलंद आवाज़ में पढ़ें। नोट द सिलेबल्स, सिलेबल्स को नोट करें। एंड मार्क द स्ट्रेस्ड सिलेबल, और बताना है कि किस सिलेबल पे हम स्ट्रेस करेंगे, जोर देंगे। वर्ड्स हैं बॉर्डर, अनफैथमेबल, फॉरेस्ट, हाउएवर, स्ट्रेट, वाइंडिंग, ट्रैवलर्स। सिलेबल्स प्रैक्टिकली, पर्टिकुलरली, अनफॉर्चुनेटली, एम्बिशन, टास्क, नेसेसरी, सम एंड कंफर्टेबली। यहाँ पे जिन सिलेबल पे हमने स्ट्रेस करना है उनको कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। बॉर्डर में 2 सिलेबल्स हैं, अनफैथमेबल में 5 हैं, फॉरेस्ट में 2 हैं, हाउएवर में 3 हैं, स्ट्रेट में 1 सिलेबल है, और ये सारा ही कैपिटल लेटर्स में है तो ये पूरा ही हम स्ट्रेस करेंगे। वाइंडिंग में 2 सिलेबल्स हैं, ट्रैवलर्स में 3 हैं, सिलेबल्स में 3 हैं, प्रैक्टिकली में 4 और पर्टिकुलरली में है 5 सिलेबल्स। अनफॉर्चुनेटली 5 सिलेबल्स, एम्बिशन 3 सिलेबल्स, टास्क 1, necessary 4, some 1 syllable and comfortably 4 syllables। हर वर्ड के लास्ट में ब्रेसेस यूज़ करके उसके जो सिलेबल्स हैं उनको सेपरेट करके भी दिखाया गया है, छोटे छोटे चंक्स में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट इज नंबर 4, मेक 5 ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स अबव अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ईच। हमें जो वर्ड्स गिवन थे उनके हमने ग्रुप्स बना लेने हैं जिसमें 1 सिलेबल यूज़ हुआ है, 2, 3, 4 या 5, उनको सेपरेट कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 1 सिलेबल्स वाले हैं स्ट्रेट, टास्क एंड सम, 2 वाले हैं बॉर्डर, फॉरेस्ट एंड वाइंडिंग, 3 में है हाउएवर, ट्रैवलर्स एंड एम्बिशन, 4 में है प्रैक्टिकली, नेसेसरी एंड कंफर्टेबली, एंड 5 में है अनफैथमेबल, पर्टिकुलरली एंड अनफॉर्चुनेटली। नेक्स्ट इज़ नंबर 5, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द ऑड वन आउट। अब जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स दिए गए हैं इस लेके एफ तक कुछ हमें वर्ड्स के ग्रुप दिए गए हैं, पर ऑड वन को हमने सर्कल कर देना है। टू फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट को फाइंड करने के लिए थिंक अबाउट द स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ईच वर्ड। हमने जिन चीज़ों का ख्याल करके इनको सेपरेट करना है वो है इनकी स्पेलिंग या इनकी प्रोनाउंसिएशन या फिर इनके नंबर ऑफ सिलेबल्स जो इसमें यूज़ हुए हैं। हर ग्रुप में जो वर्ड्स के मैंने इनको देख लेते हैं। ए है फीट, स्लीप, डीप, स्टीक एंड सीट। बी चांस, ब्रांच, चिकन, चॉइस, एग। C number, foresee, through, drink and borrow. D coin, lotion, lion, petition, station. E caught, ghost, ought, through, plow. F है forever, summary, practice, careful and seemingly। इन वर्ड्स का डीप एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है ए में है ऑड वन स्टीक और इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। बी में है एक, सी एच इज़ प्रोनाउंस डिफरेंटली, इसमें सी एच की आवाज़ को डिफरेंटली प्रोनाउंस किया गया है। ड्रिंक में है 1 सिलेबल की वजह से ये ऑड वन है। डी में कॉइन है, ओ आई इंस्टेड ऑफ आई ओ, आई यानी बाकी वर्ड्स में आई हुआ है लेकिन इसमें ओ आई यूज़ हुआ है। ई में है गोस्ट, जी एच इज़ वॉइस्ड, द अदर्स आर नोट। एफ में है केयरफुली, इसमें 2 सिलेबल्स यूज़ हुए हैं इसलिए ये डिफरेंट है बाकियों से। The next section of exercise is section C, adjectives revision. Do you remember forming adjectives by adding the following? क्या आपको याद है जब हम adjectives create करते थे इस तरह से o u s y, full, less, a l l y या e n ऐड करके किसी भी वर्ड्स के अंदर। और जो वर्ड्स हमें गिवन है वो हैं dangerous, greedy, truthful, hopeless, comical, lovely and golden। इसकी एग्जांपल्स हैं। Here are some more ways of forming adjectives from verbs। verbs पे adjective बनाने के लिए कुछ और तरीके भी हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे। adding ing या हम ing ऐड कर सकते हैं इसमें, फार्म से फार्मिंग, डांस से डांसिंग, या फिर ed हीट, हीटेड, लर्न, लर्नड। नेक्स्ट मेथड है en ऐड करना, गिव, गिवन, मिस्टेक, मिस्टेकन। एबल ऐड करने से यूज़, यूजेबल, लव, लवेबल। फुल की एग्जांपल है केयरफुल एंड सिनफुल, सम, ट्रबल सम। नंबर 1 हमें गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस विद एडजेक्टिव्स फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में हमें वर्ब्स गिवन है, ऐसे मैंने एडजेक्टिव क्रिएट करने हैं और ब्लैंक्स को फिल करना है। ए है द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन अ डैश स्टोरी। बी द डैश रूफ ओपन लीक्स। सी 9 स्टूडेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड द डैश क्वेश्चन। डी है द डैश चाइल्ड वाज सेंट होम। E the dash professor left all his books at home. F even the dash water was not really very clean. G only the dash students listen to the teacher. H she is very pleasant and has a dash manner. I the dash policeman walked down the road. J some dash children were tempered with a clock। बॉक्स में हमें जो वर्ड्स गिवन है देख लेते हैं। ड्रिंक, थैच, थ्रिल, इंटरेस्ट, ट्रबल, प्लीज, गिव, मेडल, फॉरगेट एंड विसल। इनको चेंज करने के बाद हम जब ब्लैंक्स में फिल करेंगे तो ये होगा ए थ्रिलिंग, बी थैच्ड, सी गिवन, डी ट्रबलसम, ई फॉरगेटफुल, एफ ड्रिंकिंग, जी इंटरेस्टेड, एच प्लीजिंग, आई विस्लिंग एंड जे मेडलसम। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन डी, प्रोवर्ब्स। नंबर 1 है मेक योर ओन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स। हमें कुछ प्रोवर्ब्स गिवन है उसकी हमने एक्सप्लेनेशन बतानी है। ए है
If two men ride a horse, one must ride behind. B है paddle your own canoe. C है don't judge a book by its cover. The next proverb is D. A soft answer turneth away wrath. E है the proof of the pudding is in the eating. अब इन प्रोवर्ब्स की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ए, इफ़ टू मैन राइड अ हॉर्स वन मस्ट राइड बिहाइंड. इन एनी एंडेवर वन पर्सन मस्ट बी द लीडर एंड द अदर मस्ट फॉलो. बी है पैडल योर ओन कैन्यू. बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. सी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. डोंट मेक क्विक डिसीजंस विदाउट लुकिंग डीपली इनटू समथिंग. डी, अ सॉफ्ट आंसर turneth away wrath. A gentle reply to someone who is angry will pacify the person. E है the proof of the pudding is in the eating. The proof of an experiment or endeavor is in the results. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching, and if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.